हम क्या करते हैं कि हमारा जो टेस्ट योर नॉलेज क्वेश्चन नंबर 6 था, उसका हमने सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया था कैलकुलेशन वाइज। बट हमें स्टडी मटेरियल से देखना था कि व्हाट आर द अदर थिंग्स विच वी कैन आल्सो कंसिडर साइमल्टेनियसली, एंट्रीज एंड ऑल, वो सारा हमारा पेंडिंग चल रहा था। तो उसे हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारा यहाँ पे जो रीवैल्यूएशन सरप्लस था 15,600 हमारा अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से आ गया था। उसके बाद क्या है, when accounting for revalued asset to which decommissioning liability attached, जब कभी भी अकाउंटिंग करोगे आप revalued asset को to which, जिसमें, क्योंकि it is the attached liability, it is what, it is the decommissioning liability is attached with the asset, it is important to understand the basis of the valuation obtained, for example। तो हमें बहुत ही ज़्यादा important है understand करना what will be the basis for the valuation and all। तो if an asset is valued on a discounted cash flow basis, जब कभी भी असेट जो है दैट द सेम इज वैल्यू है ऑन अ डिस्काउंटेड कैश फ्लो, सम वैल्यूअर्स में वैल्यू द असेट विदाउट डिडक्टिंग एनी अलाउंस फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट। तो क्या होता है कि बहुत बार जब भी एसेट को वैल्यू किया जाता है डिस्काउंटेड कैश फ्लो में, तो बहुत सारे वैल्यूअर्स जो है वो उसे वैल्यू कर लेते हैं बिना कंसिडरिंग किए, डिडक्टिंग विदाउट डिडक्टिंग एनी अलाउंस फॉर डीकमीशनिंग कॉस्ट, ग्रॉस वैल्यूएशन, वेर एज अदर्स में वैल्यू करते हैं द एसेट आफ्टर डिडक्टिंग एन अलाउंस फॉर द डीकमीशनिंग कॉस्ट नेट करके करते हैं। बिकॉज एन एंटिटी एक्वायरिंग द एसेट विल जनरली ऑल्सो अज्यूम द डीकमीशनिंग ऑब्लिगेशन, बट मतलब कुछ वैल्यूअर्स ऐसा कर लेते हैं, ग्रॉस में कर लेते हैं, कुछ नेट में कर देते हैं, but what we need to consider hereby, this is the important part for our student। So hereby, because an entity acquires the asset will generally also assume the decommissioning obligation, क्योंकि आपके asset के साथ आपकी decommissioning obligation तो रहेगी, you can't deny for the same। So for financial reporting purpose, the decommissioning obligation is recognized as a separate liability। तो financial reporting FR के purpose से for the financial reporting the decommissioning obligation recognized होगी as an asset, is a separate liability and is not deducted from the asset, so you can't deduct the same। So while calculating the fair value, some fair the valuers do the net, some does the gross carrying, but for understanding the purpose for the financial reporting purpose, you can't deny for the same, and we need to consider as well। So what we need to do, it is very necessary to adjust the valuation obtained by adding back the allowance for the liability, so that the liability is not counted twice। So we need to do what, it is very necessary to adjust the valuation obtained by adding back the allowance for the liability, so that the liability is not counted twice। If somebody is watching directly this video, so may not that the same may not get what I really want to say and what this para क्या लिखा है, because we have done the calculation, now we are on this part। So whoever watching this one, either you solve the question, otherwise go back to that calculation and then must see this one as well। And the next come, if an asset is valued on a depreciated replacement cost basis, अगर suppose जो asset है उसे value किया गया हो replacement cost basis पे, so the valuation obtained may not include an amount for the decommissioning component of the asset। If it does not, an appropriate amount will need to add it to the valuation to reflect the depreciated replacement cost of that component। Since the asset is valued on a net basis, because asset को हमने क्या है, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, if an asset is valued on a depreciated replacement basis, the valuation may not include the decommissioning component, but if it is does not, an appropriate amount will not be added to the valuation to reflect the depreciation। तो आगे क्या कह रहे हैं वो डायरेक्टली पढ़ते हैं हम। सिंस असेट इज वैल्यूड ऑन अ नेट बेसिस, असेट को हमने कैसे वैल्यू किया है, दैट इज ऑन नेट बेसिस, इट इज नेसेसरी टू एडजस्ट द वैल्यूएशन ऑब्टेन बाय एडिंग बैक द अलाउंस फॉर द लायबिलिटी। और हमें अलाउंस को ऐड करना होगा, वैल्यूएशन ऑब्टेन ऑफ जैसे कि 1,15,000 प्लस डीकमीशनिंग कॉस्ट हमारी 11,600 था, इसको हमने डिडक्ट कर दिया था, तो डिडक्ट नहीं होगा, इट शुड बी अ मतलब we need to add it back allow for in the valuation but recognize as separate liability as this separate liability। 3 ईयर का डेप्रिसिएशन ये हमने कैलकुलेट किया था, 3/40 9,000 डेप्रिसिएशन आया था, एंड ये हमारा अकॉर्डिंगली आ गया था। रीवैल्यूड अमाउंट कितना हुआ था हमारा, ये वाली हमारी न्यू वैल्यू आई थी और सारा हो गया था। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर 4-5 के लिए डेप्रिसिएशन हमारा लगेगा 3420 हमारा भी ऑलमोस्ट इतना ही आ रहा था, या फिर 3422 ऐसा कुछ आ रहा था।
उसके बाद अंदर डिस्काउंट एक्सपेंस फॉर नेक्स्ट ईयर के लिए 2005 के लिए हमने ये किया था। 31 मार्च 2005 में डीकमीशनिंग लाइबिलिटी बिफोर द एडजस्टमेंट, जो डीकमीशनिंग लाइबिलिटी थी 5000 वाला जो सब्सिक्वेंट अमाउंट था उसको एडजस्ट करने से पहले हमारी ये वाली लाइबिलिटी आ रही थी। ये वाली कैसे आ रही थी? ये वाली आ रही थी स्टार्टिंग के 3 ईयर्स की हमारी 11,600 हो रही थी, फिर 600 हो गई थी वापस 4-5 की, तो हमारे अकॉर्डिंगली 12,200 आ रही थी। फिर वापस एडजस्टमेंट आ गया था फॉर द डिक्रीमेंट इन द लाइबिलिटी, डिक्रीमेंट इन द प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लाइबिलिटी। तो ये तो अगर डिक्रीज हो रहा था अकॉर्डिंगली हमारा भी प्रोविजन जो है वो डिक्रीज हो गया था। The whole of this adjustment is taken to the revaluation surplus. सारा का सारा ये adjustment revaluation surplus में जाएगा because it does not exceed the carrying amount that would be recognized had the asset been carried under the cost model. If it is done, the excess would be taken to P&L and the entity makes the following entry to reflect the change. तो सबसे पहले जो हमें वो जो एंट्री थी उसको बताना होगा, वो क्या आएगी, दैट इज द हमारा प्रोविजन कम हो गया तो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी टू, ये रिवैल्यूएशन मॉडल वाला क्वेश्चन है तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। दैट कम्स बिकॉज दिस इज नॉट द कॉस्ट मॉडल, तो अकॉर्डिंगली ये रिवैल्यूएशन सरप्लस में डाला है एज एट 31। अगर इसी जगह वो होता जैसे कि इससे ऊपर वाला क्वेश्चन है तो उसमें क्या था, प्रोविजन फॉर दिस टू पीपीई, बट इसमें रिवैल्यूएशन है तो अकॉर्डिंगली इसमें डाला है। As at 31st March 2005, the entity revalue करा asset 1,07,000 which is net of allowance. Net of allowance 7,200 का था। ये वाला अमाउंट हमने कंप्यूट करके 12,200 माइनस 5,000 किया तो 7,200 आ गया था, उसको वापस एड बैक किया। उसके बाद for the reduced decommissioning and that should be recognized as a separate liability. The valuation of the asset for the financial reporting purpose before deducting allowance is therefore इतना हुआ, उसको ऐड किया एंड द फॉलोइंग जर्नल एंट्री इज नीडेड। तो सबसे पहले हमें जब ये सारा हो गया 31 मार्च 2005 में हमने डेप्रिसिएशन की एंट्री की, डेप्रिसिएशन की एंट्री की। और डेप्रिसिएशन मतलब हमने जब डेप्रिसिएशन निकाला ना तो हमने वो जो प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग उससे हमारी कॉस्ट कम हो गई तो उसको कंसिडर करके हमने अमाउंट निकाला और पूरा वो सारा निकल के हमारा जो डेप्रिसिएशन आया था डेट कम एज 3420 या किसी का 3421 या 22 ऐसा आएगा तो भी चल जाएगा। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन टू असेट ऑन टू एसेट एट वैल्यूएशन, तो डेप्रिसिएशन बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज, उसके बाद रीवैल्यूएशन सरप्लस टू एसेट वैल्यूएशन। 8980 कैसे आया था हमारा? 8980 हमने एक्चुअली कंप्यूट किया था, अगेन लाइट चली गई। एलिमिनेटिंग एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 3420 विद द एंटिटी, ये हमारा हो गया था। उसके बाद द डेबिट इज टू रिवैल्यूएशन सरप्लस because the deficit arising on the revaluation does not exceed the credit balance in the existing one। ये आया हमारा, स्टार्टिंग में हमारा रिवैल्यूएशन सरप्लस था 15,600, फिर उसमें क्या हुआ कि हमारा 5,000 अराइजिंग ऑन डिक्रीज लेस 8980 डेफिसिट ऑन रिवैल्यूएशन, तो इट विल कम एज 11,620। इतना बैलेंस हमारे पास था। करेंटली मुझे और कुछ दिख नहीं रहा है तो वी आर स्टॉपिंग हियर बाय। वी हैव रिमेन with one point that how we calculate this 8980, we should continue this one, revaluation surplus to asset at valuation 8980। तो हमने अपने कैलकुलेशन में जिस हिसाब से किया था हमारा रिवैल्यूएशन गेन था 15,600 और ये हमारा रिवैल्यूएशन लॉस था 3978।
और उसके बीच में हमारी एक लाइबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई थी। तो ये हमारा आया अकॉर्डिंगली 11,622, जो कि इनका भी आ रहा है। इफ आई कंसिडर द थिंग, बट स्टिल मेरा आ नहीं रहा है। वी हैव रीवैल्यूएशन सरप्लस विद अमाउंटिंग दैट इज 15,600। फिर रीवैल्यूएशन लॉस आ रहा है मेरा, दैट इज अमाउंटिंग रुपीज 3978। This come as 1162. Now the case is ये मुझे नहीं आ रहा है, ये कहाँ से आया, आई डोंट नो। आई वॉन्ट दैट whoever solve this one, please compute in the comment section how does it come, how can we reach to the entry that is 8980. Alright, so eagerly waiting for everybody to comment that how we will reach to 8980 and how we will calculate this thing.